Hello students, today I am going to teach you some of the topics of the chapter Human Eye and the Colorful World. So those topics are refraction through prism, dispersion, atmospheric refraction, Tyndall effect and the scattering of light. So first I am going to start with the refraction through prism. Prism, it is a piece of glass or any transparent material bounded by two triangular and three rectangular surfaces as you can see in this picture. It is a piece of glass जिसके अंदर दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं तो सच ग्लास स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्रिज्म. The rectangular surfaces are called the refracting surface and the angle between two refracting surfaces is called the refracting angle or the angle of prism. Now we will study how the refraction of light takes place through a prism. See in this diagram a ray of light and see also the cursor where it is moving on the diagram like PE. Here PE is entering from air to the glass. PE light ray entering कहाँ से enter हो रही है? एयर से ग्लास के अंदर एंटर हो रही है एट द फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म दैट इज AB से हमने रिप्रेजेंट करा है. प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस से एंटर हुई और यहाँ पे इट बेंड्स और बेंड होगी एंड रिफ्रैक्टेड हुई मीन्स इट बेंड टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल पाथ मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गई है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट द एट द सेकेंड सरफेस AC. नाउ सी दिस सरफेस AC. एट द सेकेंड सरफेस द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ग्लास टू द एयर. ग्लास से एयर में करा सो इट ऑल्सो बेंड. So from this diagram we can easily understand that how refraction can occur through a prism where PE जो मैं PE आपसे बार बार बोल रही हूँ PE is representing the incident ray, EF is the refracted ray, FS is representing the emergent ray here, A is the angle of prism, I is the angle of incidence which is formed in between the normal and the incident ray, R is the angle of refraction which is formed between the refracted ray and the normal, E is the angle of emergence which is formed between the emergent ray and the normal. There is one more angle that is the angle of deviation. So angle of deviation, it is the angle at which the emergent ray मेक्स विद द इंसिडेंट रे. मतलब इमर्जेंट रे किससे आकर मिलती है? इंसिडेंट रे से आकर मिलती है. ठीक है. तो वहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. When a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into band of color. जब बीम ऑफ वाइट लाइट मीन्स सनलाइट पास होती है किसी ग्लास प्रिज्म से, यू कैन ऑल्सो सी इन दिस डायग्राम, देन इट स्प्लिट्स इनटू द बैंड ऑफ कलर्स एंड दिस बैंड ऑफ कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम. इसे हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम. एंड द कंप्लीट फिनोमिना इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट. सो द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट हैज़ द कलर्स violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. In short, Vibgyor. उसको हम विबग्योर बोलते हैं. एंड द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट. सबसे कम जो बैंड होगी वो रेड लाइट होती है. यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम. और सबसे ज़्यादा होती है दैट इज़ वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट. नाउ सी द एनिमेटेड पार्ट ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट. सी हाउ द डिस्पर्शन कैन टेक्स प्लेस इन द प्रिज्म. Next is the recombination of white light. So when a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into its component colors. अभी हमने पढ़ा था कि जब भी beam of white light पास होती है ग्लास प्रिज्म से तो ये component colors that is spectrum में break हो जाती है. And when these colors are allowed to fall in inverted glass prism, you can also see in this diagram कि जब ये कलर्स आर अलाउड टू फॉल ऑन अ इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म इट रिकम्बाइंस टू प्रोड्यूस अ वाइट लाइट. ये रिकम्बाइन होके वाइट लाइट का फॉर्मेशन करती है. नेक्स्ट इज द रेनबो फॉर्मेशन. So a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower and it is caused by the dispersion of sunlight by water droplets present in the atmosphere. और ये जो water droplets होती है the water droplet acts like a small prism. तो again वही prism का जो हमने अभी पढ़ा था dispersion वाला फिनोमिना होगा इसमें. इसमें तीन टाइप के लाइट के प्रोसेसेस होते हैं. फर्स्ट दे रिफ्रैक्ट. लाइट रे जैसे ही एंटर करेगी रिफ्रैक्शन होगा, देन उसके अंदर डिस्पर्शन होगा, देन अगेन रिफ्लेक्शन
एंड लास्ट अगेन होगा उसमें रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन फिनोमेना होते हैं. एंड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, द वाटर ड्रॉपलेट, वी सी द रेनबो कलर्स. हमें रेनबो कलर्स नज़र आते हैं. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस डायग्राम. सी दिस डायग्राम वंस अगेन. सनलाइट जो है ए बी इज़ द इंसिडेंट लाइट जो कहाँ पर आ रही है, इन दिस सर्कल, दैट इज एक्टिंग एज अ रेन ड्रॉप हियर. इस रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करा तो जैसे ही एयर से प्रिज्म के अंदर एंटर होगी तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस डायग्राम. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन प्रोसेस होगा, मीन्स वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगा. देन रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक होगी लाइट रेज का, और बाउंस बैक होके वापस उसमें रिफ्रैक्शन होगा. और उसके बाद जब वो रेन ड्रॉप से निकलेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ 7 कलर्स. ओके, दैट इज द रेनबो formation. You can also see in this animated part as well as in this small picture here that how the rainbow is formed. Now next is the atmospheric refraction. So the refraction of light due to the different layer of the atmosphere is called the atmospheric refraction. और different layer of atmosphere की वजह से हर atmospheric layer is having different densities, तो उसकी वजह से light के अंदर refraction होता है. Now there are various phenomena based on this refraction, atmospheric refraction. First I am taking the twinkling of stars. See, the twinkling of stars is due to the atmospheric refraction. As the light from star enters the earth atmosphere, जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होते हैं. और अभी बताया था रिफ्रैक्शन क्यों होते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेरिक लेयर्स की अलग अलग डेंसिटीज़ होती है जिसकी वजह से उसके अंदर रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है. और ड्यू टू द चेंजिंग इन द पोजिशन ऑफ द स्टार्स and the movement of layer of the atmosphere, the light from stars is sometimes brighter and sometimes fainter. कभी तो हमें बहुत bright नज़र आती है, कभी बहुत dim नज़र आती है, और इसी तरह से हमें stars जो है वो twinkle करते हुए नज़र आते हैं. Next is the planets do not twinkle. Now the question is why planets do not twinkle? Because planets are very close to the earth in comparison to the stars. Okay, and the light from stars is considered as a point source of light because they are very far from our earth, and the light from planet are considered as an extended source of light. So the light from the planet nullify the twinkling effect, क्योंकि वो बहुत पास होते हैं तो वो रिफ्रैक्शन शो कर ही नहीं पाते हैं. Next is the advanced sunrise and delay sunset. See, the sun is visible to us about 2 minutes before sunrise and about 2 minutes after the sunset due to the atmospheric refraction. So this phenomena is also based on the atmospheric refraction. यहाँ पे यू कैन सी इन दिस डायग्राम एक वर्ड लिखा हुआ है, हॉरिजन इज रिटन हियर. सो हॉरिजन दैट इज अ प्लेस वेयर अर्थ एंड स्काई मीट्स टुगेदर, अपीयर्स टू मीट्स टुगेदर, कि वहाँ पे लगता है कि अर्थ और स्काई दोनों साथ में मिल रहे हैं. तो दैट पोर्शन इज नोन एज द हॉरिजन. तो लाइट रे जब आती है, दिस इज द सन हियर. अब जब लाइट रे आती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है, एंड रिफ्रैक्शन की वजह से हमें बिफोर 2 मिनट्स पहले ही सन हमें दिखता है. दैट इज़ द एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, इमेजनरी पोजीशन होती है, बट एक्चुअल सनराइज जो होता है 2 मिनट के बाद होता है. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एज द नेम इंडिकेट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का स्कैटर होना, फैलना. तो इसके अंदर सबसे पहले आता है टिंडल इफेक्ट. सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल. जब बीम ऑफ लाइट पास होती है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से, तो उसमें लाइट रेज हमें इजीली विजिबल हो सकती है. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस 2 पिक्चर्स. और ये क्यों होती है? due to the scattering of the light by the colloidal particles. So this effect is known as the Tyndall effect. मतलब जो हमें वो ray of light का path visible होता है, तो that is known as the Tyndall effect. So the earth atmosphere contains air molecules, water droplets, dust, smoke, etc. So when sunlight passes through the atmosphere, the path of the light become visible. तो वो देखिए हमें it can be easily visible. और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय दीज पार्टिकल्स, दीज कोलाइडल पार्टिकल्स. नेक्स्ट, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? वो ब्लू क्यों दिखता है?
अगेन जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इन द एटमॉस्फेयर में हैव द साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, सो दे कैन स्कैटर्ड ब्लू कलर, वो सबसे ज़्यादा क्या स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को, विच हैज़ द शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ है जल्दी स्कैटर्ड हो जाती है, जबकि जो रेड लाइट होती है उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, इसलिए वो स्कैटर्ड नहीं कर पाती है. तो when sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in the atmosphere scatter the blue color because it is of shorter wavelength. ठीक है. एंड लाइक अगर हम स्पेस का देखें तो स्पेस में क्या होता है, एकदम डार्क नज़र आता है. वाई? बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, और जब वहाँ एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं तो लाइट की स्कैटरिंग और होगा ही नहीं. नाउ नेक्स्ट इज कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट. जो कलर होता है स्काई का सनराइज और सनसेट के टाइम रेडिश या येलोइश नज़र आता है. क्यों? क्योंकि एट सनराइज एंड एट सनसेट द सन इज नियर द हॉरिजन and the light from the sun travels through thicker layer of the atmosphere and longer distance through the atmosphere. अब जब longer distance cover करेगी light rays तो obviously वहाँ पे कौन सा होगा, जिसकी higher wavelength होगी, and this जिसकी होती है that is the red color. तो नियर हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड द शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है, तो हमें वो दिख नहीं पाती है. जबकि जो रेड लाइट होती है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर वेवलेंथ इट रीचेज आवर आई एंड सो द सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज एंड sunset. So thank you for today. Thank you very much for watching this video and please subscribe my channel. Thank you.